Yeah, good morning, dear students. Today we are going to discuss a new topic that is sinusoids and phases. Sinusoids and phases. All right. So I believe we all know this topic, but this topic is important with respect to AC signals. Okay. What I mean to say is, for example, आप Kirchhoff laws पढ़ते हो, you study Kirchhoff laws. So those Kirchhoff laws are applicable to all type of supplies, whether it is AC or whether it is DC. ठीक है. और AC में बात करें अगर हम तो AC में भी ट्राइंगुलर सप्लाई हो या कोई भी टाइप की सप्लाई हो, ट्राइंगुलर हो, स्क्वायर वेव हो या और भी कोई शेप होगा उसका, तो ऑल टाइप ऑफ सप्लाईज के लिए वो एप्लीकेबल है. ठीक है. बट इस पर्टिकुलर सिलेबस में जो आप पढ़ोगे हम सिर्फ साइनसोइडल सप्लाई के लिए पढ़ेंगे. ठीक है. व्हाट आर साइनसोइड्स? इफ आई टॉक अबाउट साइनसोइड्स देन साइनसोइड्स आर what? Tell me. Two type of signals are called as sinusoids: sine signal and cosine signal. These together are called as sinusoids. And what are phasors? Phasor is nothing but the frequency domain representation of these two signals. Okay. For example, I am writing Vm angle phi. So this particular representation is in frequency domain and this particular representation is in time domain. So sinusoidal representation is in time domain and phasor representation is in frequency domain. Okay. अभी इतना दिमाग में सेट कर लो, आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है. ठीक है. छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, वो मैं यूज करूंगा आगे, इसलिए मैं पहले से बहुत क्विक इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ओके, फर्स्ट टर्म इज दैट आई विल बी यूजिंग इज sorry, that is periodic function. What is a periodic function? You all know about it. A periodic function is a repetitive function. And what is the quality of it? That it repeats itself after a fixed time period. And that particular time period, the lowest value of that time period is called as periodic function. ये तो language हो गई. इसको mathematically कैसे लिखेंगे? Just a moment. Alright. So moving on, I was talking about periodic signal. Pardon my writing. Periodic signal. So what are periodic signals? Let me define periodic signal like this. Okay. So this function is repeating itself. Function repeat कर रहा है अपने आप को. कब? After t, 2t, 3t, 4t, 5t. So n is basically like this. 1, 2, 3, 4. ठीक है. When n is 1, then the smallest value of time period after which the signal repeats itself उसको हम बोलेंगे fundamental time period. Fundamental time period. Okay. चलिए. Moving on to the next part is complex number. कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ठीक है. देखते हैं क्या होते हैं. जस्ट अ मोमेंट. जस्ट वन मोर पॉइंट, इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिकैप देखें. यहाँ पे t जो है बेटा, इसका अगर आप रेसिप्रोकल लोगे then that will be called as frequency. Okay, 1 upon f is equal to t. Okay, f is in hertz and time is in seconds. Okay. One more term that is frequently used is
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ के बराबर होता है। अगर आप ओमेगा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होगी जल्दी से बताइए। देखिए ये एंगल है बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन, और इसकी यूनिट होगी पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब हम जो नेक्स्ट डिस्कशन देखेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Yes, complex numbers basically deals with a set of numbers which is something like this. देखिए मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा शायद 9th या 10th क्लास में, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, वेयर I was what, I was under root -1, a is real part, b is imaginary part, and z is the complex number. अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में we already know that I is reserved for denoting current, so that's why we will use, instead of I we will use j। सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। एवरीथिंग रिमेन सेम, जस्ट दैट ए की जगह हम जे यूज करेंगे, आई की जगह हम जे यूज करेंगे, रहेगा मतलब वही। ए इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड बी इक्वल टू क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है बाबा, इतना समझ में आ गया बच्चा लोग। ओके, अब जब तक मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा जिससे वीडियो की लेंथ ना बढ़े। ओके, ऑलराइट, सो मैंने एक ग्राफ बना लिया बाबा। अब आप देखो, इसको बोलते हैं बेटा हम कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन प्लेन। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा बेटा, दिस इज अ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ एसी को हैंडल करने के लिए इसके बेसिक्स चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं, लेट अस सपोज ये एक्सिस हो गई रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको हम ए बोल देंगे, ए एक्सिस। ठीक है, और ये हो गई बी। ठीक है, या फिर इसको आप ले लिए जे बी। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ये प्लस जे बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस जे बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है z इज इक्वल टू 3 + 4j, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, और इधर 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो आ गया, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका z। ठीक है, ये z हो जाएगा। इसको लिखने की यहाँ दोबारा से जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट z। 3, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4j। ठीक है, मूविंग ऑन। अब इसके कितने रिप्रेजेंटेशंस होते हैं इस पे हम ध्यान देते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो हमें ये यहाँ तक मतलब समझ में आ गया बेटा लोग। अब बच्चा हम क्या पढ़ेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस आर देयर फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट अस सी। सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इज लाइक दिस, z इज इक्वल टू a प्लस jb। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज z इज इक्वल टू r एंगल फाइ। इसको हम कौन सी फॉर्म बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं, पोलर फॉर्म। और इसको हम बोलते हैं z इज इक्वल टू r e की पावर j5। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या फिर यूलर फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल या यूलर फॉर्म हो गया। ठीक है, एंड व्हाट इज r एंड व्हाट इज फाइ। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस वाले ग्राफ में इस वैल्यू को, इस लाइन को ओरिजिन से जोड़ देंगे। तो ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा, या फिर यहाँ पे आपने फाई डिनोट करा है तो फाई ले लीजिए। ये वाला एंगल फाई होगा, और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी आर। तो बताइए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो
आर इक्वल टू क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट a square plus b square, and what will be 5? 5 will be tan inverse b upon a. ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है रिगार्डिंग, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, आई एम सॉरी, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इस वैल्यू से हम निकालेंगे आर्ग्यूमेंट। ओके, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, और उसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में आ गया तो एंगल तो आपका ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो देखो बेटा, ये आर्ग्यूमेंट जो होता है वो ये वाला एंगल होता है। ये एंगल जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये रेडियस है या ये जो पॉइंट है ओ जेड, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उस हम एंगल को कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ी सी डिटेल है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब देखो इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आपका 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये क्वाड्रेंट 1 2 3 4, और हम एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, एक पॉपुलर एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4j का। ये ट्राइंगल आपको नॉर्मली याद रखना चाहिए, ये पॉपुलर ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 5 है, और ये वाला एंगल बताओ कितना है, चेक करके बताओ। ये वाला एंगल आई थिंक 53 है ना? और दूसरा वाला एंगल कितना है? ये एंगल है 37। भाई दोनों का एंगल का समेशन 90 डिग्री होगा ना, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 37 डिग्री और इसकी वैल्यू आएगी 53 डिग्री, ठीक है। तो ये एक पॉपुलर ट्राइंगल है जिसको हम याद रखते हैं। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 केस हैं। ये वाला केस क्या है? z इज इक्वल टू 3 प्लस 4j, और ये वाला केस क्या है? z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4j, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉजिटिव था, यहाँ पे 3 नेगेटिव हो गया, और इमेजिनरी एक्सिस दोनों में ही पॉजिटिव है, ठीक है। ज्योमेट्री पे ध्यान दी मत दिए बेटा, बहुत सिमेट्रिक नहीं बना पा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा? ये 3 पॉजिटिव होगा और j क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। z इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4j, ठीक है। अब जब मैं इसको आपको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए कहूंगा तो आप कहेंगे सर बड़ा ही सिंपल है, पहले मैं इसको r एंगल थीटा निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दूं r एंगल थीटा हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक होगा। अब इसके लिए निकालिए तो क्या आएगा? 3, आई एम सॉरी, it will be under root 3 square plus 4 square, that will be 5 एंगल 53 डिग्री, ठीक है। अब इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए भी 5 एंगल 53 डिग्री आ जाएगा, इसके लिए भी कितना आ जाएगा? 5 एंगल 53 डिग्री, बिकॉज tan इनवर्स -4 अपॉन -3 करोगे दैट विल कम आउट टू बी 53, ओके, बट दैट इज नॉट करेक्ट, ओके। सो अगेन इसके लिए आप निकालोगे तो क्या आएगा? 5 एंगल 53 डिग्री माइनस का, और इसके लिए आप निकालोगे तो इसके लिए आएगा 5 एंगल 53 माइनस का, बिकॉज एंगल कैसे निकालोगे? tan इनवर्स 4 अपॉन -3 दैट विल कम आउट टू बी 53 डिग्री, ये वाला एंगल निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तो सही है, ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है। इन दोनों आपको क्वाड्रेंट्स में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है। अगर ट्रिक बताने की बात आएगी तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है या यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव है, तो आप इसके अंदर 180 डिग्री ऐड करोगे और इसके अंदर 180 डिग्री सब्सट्रैक्ट करोगे, तो एंगल कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आएगा? इस पोर्शन को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ so that I can write here. I hope you people don't mind. ठीक है बाबा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? इस जगह पे आंसर आ जाएगा आपका 5 एंगल 127 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 एंगल माइनस 127 डिग्री। तो जब आप अपने कैलकुलेटर से कन्वर्ट करोगे नंबर्स को,
तब आपको ये आंसर दिखाई देगा कि जब हम 3 -3 + 4j को कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। सिमिलरली जब हम कन्वर्ट करेंगे -3 - 4j को तो उसका आंसर ये आएगा। ठीक है, और 3 + 4j को करेंगे तो कोई इशू नहीं है, 3 - 4j को करेंगे तो अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप मैनुअली कर रहे हो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 180 डिग्री ऐड करोगे और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 डिग्री सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको कुछ हद तक समझ में आ गई होंगी। अभी धीमे धीमे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम करूंगा बेटा, इसमें बहुत लंबा वीडियो हो गई है, 15 मिनट्स की वीडियो हो गई है ऑलमोस्ट। तो कुछ क्विक रिकैप और फॉर्मूलाज और देख लीजिए। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, z = a+jb। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म हो गई z = r e⁻j थीटा। यहाँ पे इस ट्राइंगल को ऐसे बनाते हैं, सॉरी, इस ट्राइंगल को हम इस तरीके से बनाते हैं। ये थीटा हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। नॉर्मली थीटा की डेफिनेशन क्या होगी, tan−1 b/a। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी से cos थीटा प्लस j sin थीटा। यहाँ क्या आ गया, r, ये क्या हो गया, z। तो z इक्वल टू क्या आ गया, r cos थीटा प्लस j sin थीटा। सॉरी, इसमें r भूल गया मैं मल्टीप्लाई करना, लेट मी मल्टीप्लाई r हेयर ऑल्सो। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो, r cos थीटा प्लस j r sin थीटा। अगर आप इसको कंपेयर करोगे z = a+jb से, तो आपको पता चलेगा कि a इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा, और b इक्वल टू क्या होता है, r sin थीटा। दैट मीन्स a इक्वल टू r cos थीटा एंड b इक्वल टू r sin थीटा। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको दे दिया 3 ∠30 डिग्री, सर कन्वर्ट करिए इसको a+jb की फॉर्म में। ठीक है बाबा, r हमें पता है, r क्या है, इसको हमने कंपेयर किया, हमने कंपेयर करा इसको, क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे इस पेन से। सोल्यूशन हमने करा यहाँ पे, क्वेश्चन हम अगले टर्न पे लेंगे बेटा। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना है, 3, थीटा इक्वल टू क्या है, ∠30 डिग्री। तो हमें चाहिए है x प्लस जेबी वाली फॉर्म, या फिर a प्लस, सो सॉरी, आप लोगों को मैं a लेके चल रहा था अभी तक, अब मैंने इसको चेंज कर दिया। तो लेट मी टेक इट बैक हाउ इट शुड बी। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो z should be equal to a plus jb, where a should be equal to r cos theta and b will be equal to r sin theta। तो ठीक है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 cos 30 and b will be equal to 3 sin 30। that will come out to be that will come out to be So that will come out to be 3 cos 30 will come out to be 3 under root 2 under root 3 upon 2, and b will come out to be 3 sin 30, that will be 3 by 2. So the result of this will be z equal to 3 under root 3 upon 2 plus j 3 by, this is what is the rectangular form. Okay, thank you so much for today. I will generate the PDF of this lecture, 20 minutes long lecture, and
आपको ऐसा लगा होगा कि ये लेक्चर पूरा मैथमेटिक्स का लेक्चर था, लेकिन ये मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं था बेटा। ये 9th और 10th क्लास की पढ़ाई हुई आपकी चीज़ें थी, पढ़ी हुई आपकी चीज़ें थी, जो मैंने आपको क्विक रिवीजन दिया एक। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे तो आपका एसी बहुत इजी हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास with more numericals about this. Thank you so much.